So, hey guys, hello, how are you all? I hope you all might be absolutely fit as well as fine and taking care of yourself as well as your families in the fast spreading Omicron cases. Always wear mask and use hand sanitizer to protect yourself as well as others from Omicron. Now let's start our chapter 13 which is why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Now हम सबको कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी सर दर्द, तो कभी बुखार, कभी टाइफाइड, कभी जॉन्डिस, बहुत सारी बीमारियाँ। यहाँ तक कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, कुछ तो पैरालाइज भी हो जाते हैं। तो हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 13.1 We all have heard of the earthquakes or the cyclones that lashed the coastal region. Think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such a disaster if it took place in our neighborhood. हम बहुत बार सुनते हैं ऐसा कि वहाँ अर्थक्वेक आ गया, वहाँ साइक्लोन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, घर ढह गया, कुछ लोगों की मौत हो गई, कुछ इंजर्ड हो गए। तो इससे बोला गया है कि अगर हमारे नेबरहुड में कुछ ऐसा हो, अर्थक्वेक आए, साइक्लोन आए, तो हम ये इमेजिन करें कि लोगों के हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप इमेजिन क्यों करें, बहुत सारे लोग इसे फील किए होंगे। I think several years before, I think 4 to 5 years before or something like that, earthquake आया था और यूपी के तो नियर अबाउट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आया था और यूपी के लोगों ने इसे फील किया। एक दिन में लगभग 4 से 5 बार अर्थक्वेक आया और लोग बाहर भी गए थे। लोग बाहर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अगर बिल्डिंग ढह गई, लोगों के ऊपर बिल्डिंग के ईंट गिर गए तो लोग उसमें दब जाएंगे, या तो वो बैडली इंजर्ड हो जाएंगे या फिर उनकी डेथ हो जाएगी। तो इससे इंजरी से हेल्थ पे प्रभाव तो पड़ेगा ना। हाउ मेनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर events that would occur when the disaster is actually happening. How many of these health related events would happen long after the actual disaster but would still be because of the disaster? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों को इंजरीज़ हो जाती हैं, बहुत लोग ऐसे इंजर्ड हो जाते हैं कि उनकी लाइफ लॉन्ग वो इंजरी चलती रहती है। मतलब अगर किसी का एक पैर चला गया, पैर टूट गया, फिर वो अच्छे से चल नहीं पाएंगे और बहुत टाइम तक इस चीज़ को झेलते रहेंगे। Why would one effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group? So this activity you all might think and do it, and let's move on to the paragraph. When we do this exercise, we realize that health and disease in human community are very complex issues with many interconnected causes. We also realize that the idea of what health and disease means are themselves very complicated. When we ask that causes disease and how we prevent them, we have to begin by asking what these notions means. We have seen that cells are the basic unit of organism. Cells are made up of variety of chemical substances, proteins, carbohydrates, fats or lipids, and so on. Cell is a dynamic place. Something or the other is always happening inside them. Complex reactions
and repair goes on inside cells. New cells are being made in our organs or tissues. There are various specialized activities going on. The heart is beating, the lungs are breathing, the kidney is filtering urine, and the brain is thinking. तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलके बने होते हैं, और इसीलिए सेल को बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. सेल जो है वो बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स और बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं. तो सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, नई सेल बनती रहती हैं, और बहुत सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट करता है, लंग्स ब्रीथ करता है, किडनी फिल्टर करती है यूरिन को, और ब्रेन सोचता है. All these activities are interconnected. For example, if kidney is not filtering urine, poisonous substances will accumulate. मतलब कि सारे जितने भी ऑर्गन्स जो काम करते हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है. अगर किडनी फिल्टर नहीं करती यूरिन को, तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस एक्युमुलेट हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस जुड़ जाते हैं. अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली. और अगर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस इकट्ठा हो जाते तो हमारा दिमाग जो है कुछ भी अच्छे से सोच नहीं पाता. फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड. तो इन सारी इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब कि दो इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ बताई गई इसमें, कि अगर हमारे बॉडी में यूरिन फिल्टरेशन नहीं होता, किडनी काम नहीं करती, तो हमारा ब्रेन ढंग से सोच नहीं पाता. तो इन सारे इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. मतलब हमारे पास अगर एनर्जी रहेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे. अगर हमारे पास एनर्जी रहेगी, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, तभी तो हमारे ऑर्गन्स काम कर सकते हैं. तो ये सारे इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ को करने के लिए एनर्जी और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. फूड इज़ अ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस. तो सेल जितने भी काम करते हैं और टिश्यूज़ जितने भी काम करते हैं, उनकी ज़रूरत है खाना, फूड. Anything that prevents proper functioning of cell and tissue will lead to lack of proper activity of the body. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे अच्छे से सेल के फंक्शन को रोके, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग को रोके, और हमारे टिश्यूज़ के फंक्शनिंग को रोके, तो हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी ढंग से. मतलब कि अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली काम करे, हम ये चाहें कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली काम करे, तो उसके लिए जो हमारे सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं वो अच्छे से वर्क करने चाहिए, तभी हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो प्रॉपरली हो पाएंगी. हम अच्छे से सोच पाएंगे, हमारे बॉडी में वेस्ट एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे. इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट that we will look at the notion of health and disease, health and its failure. The significance of health. We all have heard the word health used quite frequently. We use it ourselves as well as when we say things like my grandmother's health is not good. Our teacher used it when they scold us, saying this is not a healthy attitude. What does the word health means? तो हम बहुत सारी जगहों पे हेल्थ का यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हेल्थ का यूज़ करते हैं. हेल्थ नाम के शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है.
जब हम कहते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में, जैसे हमारे ग्रैंड मदर की तबीयत सही नहीं है, हमारे ग्रैंड फादर की हेल्थ सही नहीं है, ग्रैंड मदर की हेल्थ सही नहीं है, तो हेल्थ नाम के वर्ड का तो यूज़ हुआ ना। हमारे टीचर बोलते हैं दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। तो हेल्थ बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है, बहुत सारी बार यूज़ किया जाता है, बहुत लोग उसे बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। तो हेल्थ का मतलब समझना ज़रूरी है। हेल्थ आखिर में होता क्या है? इफ़ वी थिंक अबाउट इट वी रियलाइज इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। अगर हम इसके बारे में सोचने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा, हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हेल्थ मतलब कि हम सही रहें, मतलब हम वेल रहें, हमें मतलब हम अच्छे से रहें, हमें कोई डिज़ीज़ ना हो, हम वेल रहें, यही तो हेल्थ है। वी कैन थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग। हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी वेल बीइंग है, मतलब हम वेल हैं, ये हमारी इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग की वजह से हो, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हो, किडनी अच्छे से यूरिन फिल्टर कर रही हो, ब्रेन अच्छे से वर्क कर रहा हो, ब्रेन अच्छे से थिंक कर रहा हो, और हमारा हार्ट अच्छे से बीट कर रहा हो, हमारा लंग्स जो है वो अच्छे से ब्रीथ कर रहा हो। तो ये सारे ऑर्गन्स, सारी चीज़ें जब इफ़ेक्टिवली काम करेगी तभी तो हम कहेंगे कि हम हेल्दी हैं, हमारी हेल्थ अच्छी है। फॉर आवर ग्रैंड मदर्स बीइंग able to go out to the market or to visit neighborhood is being well। हमारे ग्रैंड मदर के लिए वो बाहर सब्ज़ी लेने जा पाएँ, वो बाहर मार्केट में जा पाएँ, यही उनके लिए उनकी हेल्थ, यही हम सोचेंगे कि उनकी हेल्थ है, मतलब हेल्थ अच्छी है। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग विद इज़ पुअर हेल्थ। और अगर वो ऐसा काम नहीं कर पाती है तो हम ये सोचेंगे कि उनकी हेल्थ पुअर है। बीइंग इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द टीचिंग इन द क्लासरूम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड हेल्दी एटीट्यूड। अगर हम क्लासरूम में इंटरेस्टेड हैं, टीचर्स की बात ध्यान से सुन रहे हैं ताकि हम दुनिया को समझ सकें, हम संसार को समझ सकें, इसी को हम कहते हैं हेल्दी एटीट्यूड। मतलब कि हेल्दी एटीट्यूड मतलब कि कहा गया है कि हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, हम इंटरेस्टेड हैं कि हमारे टीचर हमें क्लासरूम में क्या पढ़ा रहे हैं, हम उसे अच्छे से समझ रहे हैं ताकि हम संसार को समझ सकें, तो वही एक हेल्दी एटीट्यूड है। While not being interested is called the opposite। तो अगर हम टीचर क्या पढ़ा रहा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता टीचर क्या पढ़ा रहा है, हम अपने फ्रेंड से बात करने में बिज़ी हैं, हम कुछ और काम करने में बिज़ी हैं क्लास में, तो ये अनहेल्दी एटीट्यूड कहा जाएगा। हेल्थ इज़ देयरफॉर अ स्टेट ऑफ वेल-बीइंग, बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो हेल्थ की डेफिनेशन बताई गई है कि हेल्थ एक वो स्टेट है, बॉडी की वो स्टेट जब हम इतने वेल हैं, हम इतने अच्छे हैं कि हमारा बॉडी अच्छे से काम कर रही हो, चाहे वो फिज़िकली हो, मतलब हम फिज़िकली भी अच्छा हैं, हम अच्छे से हैं, फिज़िकली भी हम वेल हैं, मेंटली भी हमारा सारा काम सही हो रहा है, हम मेंटली भी वेल हैं और सोशली भी वेल हैं, इसी को हम हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ इज़ देयरफॉर a state of being well enough to function well physically, mentally and socially। तो हेल्थ वो स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो या फिर सोशली हो। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। If health means a state of physical, mental and social well-being, it cannot be something that each one of us can achieve entirely on our own। अगर हेल्थ जो है फिज़िकली, मेंटली और सोशली अच्छा होना है तो हम इसे अपने से तो अचीव नहीं कर सकते हैं।
The health of an organism will depend on their surrounding of their environment. तो जो हेल्थ है एक ऑर्गेनिज्म की वो उसके सराउंडिंग्स पे डिपेंड करती है, वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है. देन द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये एनवायरनमेंट में एक फिजिकल एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है. फॉर एग्जांपल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज. अभी हमने एक्टिविटी में बात किया कि अर्थक्वेक आता है और साइक्लोन आता है तो क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पे. तो अगर साइक्लोन आया तो हमारी हेल्थ बहुत सारे वेज में रिस्क में है. ह्यूमन बीइंग लिव इन societies. Our social environment therefore is an important factor in our individual health. हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे हेल्थ के लिए. We live in village, towns or cities. In such places, even our physical environment is decided by our social environment. तो हम कहीं भी रहें, हम विलेज में रहें, सिटी में रहें या फिर टाउन में रहें, इन सभी जगहों पे हमारा फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे सोशल एनवायरनमेंट से डिसाइडेड होता है. मतलब हमारी फिज़िकल एनवायरनमेंट डिसाइडेड होती है कि हमारी सोशल एनवायरनमेंट कैसी है. Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed. अगर कहीं भी गार्बेज का कलेक्शन या फिर डिस्पोजर ना हो, कोई भी एजेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो, तो क्या होगा. What would happen if no one takes the responsibility of clearing the drains and ensuring the water does not collect in the streets or open spaces. तो अगर कोई रिस्पॉन्सिबल ना हो, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो ड्रेनेज क्लियर करने की और वाटर जो कलेक्ट हो रहे हैं उनको साफ़ करने की, तो क्या होगा. व्हाट वुड हैपन. बहुत सारे गंदे पानी इकट्ठे हो जाएंगे, उस पर मच्छर बैठने लगेंगे, मतलब मॉस्किटोज़ आने लगेंगे, ब्रीड करने लगेंगे, जिससे लोगों को मच्छर काटेंगे और लोगों की हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा. डेंगू होगा, मलेरिया होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ होगी, जिससे उनकी प्रॉपर बॉडी की फंक्शनिंग रुकेगी. प्रॉपर फंक्शनिंग रुकेगी तो हेल्थ पे प्रभाव पड़ेगा, वो हेल्दी नहीं रहेंगे. So if there is a great deal of garbage thrown in our streets, or if there is open drainage water lying stagnant around where we live, the possibility of poor health increases. Therefore, public cleanliness is important for individual health. तो अगर कोई गार्बेज से डील करने वाला नहीं रहेगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, बहुत पानी इकट्ठा होगा, जिससे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है जगहों पे तो वहाँ पे मॉस्किटोज़ ब्रीड करेंगे, जिससे हमें मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू जैसी बहुत सारी बीमारियां होंगी. तो हमारे सराउंडिंग से भी हमारे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है. हमारी पुअर हेल्थ की कंडीशन इंक्रीज़ हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो. So public cleanliness is also very important for one's health. Now activity 13.2. Find out what provisions are made by your local authority, panchayat, municipal corporation for supply of clean drinking water. Are all the people in your locality be able to assess these? So this is the activity which you should find it out. Now activity 13.3. Find out how your local authority manage the solid waste generated in your neighborhood. Are these measures adequate? If not, what improvement would you suggest? What could your family do to reduce the amount of solid waste generated during a day or week?
We need food to be healthy, and this food will have to be earned by doing work. For this, the opportunity to do work has to be available. तो हम सबको खाने की ज़रूरत पड़ती है अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, और इस फूड को, मतलब जो हमें खाना मिलता है, वो हम काम करके पैसे कमा के उस खाने को खा सकते हैं। तो खाना खाने के लिए हमें पैसे कमाना पड़ता है, और काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है। We need to be happy in order to be truly healthy. And if we mistreat each other and are afraid of each other, we cannot be happy or healthy. तो जब हम खुश रहेंगे तब हमारी बॉडी एक हेल्दी बॉडी रहेगी। हम खुश रहेंगे तब हमें कोई मेंटल टेंशन नहीं रहेगा। मेंटल टेंशन नहीं रहेगा, हमारी मेंटल स्टेट सही रहेगी, तब हम हेल्दी रहेंगे, मेंटली हेल्दी रहेंगे। तो अगर हम एक दूसरे से झगड़ा करते हैं एंड एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, तो हमारी मेंटल स्टेट सही नहीं रह सकती, और अगर हम हैप्पी नहीं रहेंगे तो हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। Social equality and harmony are therefore necessary for individuals' health. We can think of many other such examples of connection between community issues and individual health. Distinction between healthy and disease free. This we will learn in the next lecture. Till then, take care, and please like, share and subscribe if you like this video. Thank you.